Okay, so what the question says is, at 0830 hours, DR position is given to us. An observation of sun gave an intercept of 4 miles towards an azimuth of 100. So as I told you, our first step should be understanding the question, and then in the second step, we should be making a rough diagram. So I will be understanding this, and along with it, I will be making a rough diagram. So let's do that. DR position is given to us. So let's draw a DR position here. This is the position which is given to us, and this is for 0830. They have given us a intercept. Azimuth is 100. So let's draw 100. Intercept is 4 miles towards. So this is where our PL is. Intercept is given to us, azimuth is given to us. Now after this, the ship is steering 250 at 14 knots. So 250 at a speed of 14 knots. That's how ship is moving. And at 11:30, another site is taken. 11:30, they have again given us a intercept site. The sun is bearing 175. 175 is the bearing of the sun, and intercept is 3 miles away. So 3 miles away. This is the PL which we have. Okay. Now they say the second site is worked by running up the DR position for calculation. Require the ship's position for 11:30 and also at noon. Okay, so beta, this is the question which we have. This latitude and longitude is given to us. This is 4830. And the longitude is 02420. This is west. This is north. Okay. So beta, this is the question which is given to us. A morning sight is taken at 8:30. Second one is at 11:30. And at 8:30, we take a intercept sight. The azimuth of the body is 100, and the intercept obtained is 4 miles towards. So I have shown that in the rough diagram. DR position is given to us 4830, 2420. The course and speed of the ship is also given to us. 250 is the course, 14 knots is the speed. And at 11:30, another sight is taken. For 11:30, they have given us the azimuth, which is 175, and the intercept, which is 3 miles away. So ये सारी information हमने यहाँ पे डाल दी. So I hope the question is clear to everyone, beta. Any doubt in the question? Okay, now let's see how this can be done. अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में 11:30 की पोजीशन चाहिए एंड उसके बाद फिर नून की पोजीशन भी चाहिए. सो 11:30 पोजीशन आ जाएगी, देन नून कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. वी हैव द कोर्स एंड स्पीड नोन टू अस. सो 11:30 पोजीशन के लिए one site for 11:30 is given to us. So this second site has to be plotted in the final plot as it is. And जो मॉर्निंग साइट इन्होंने ली है वो ली है 0830 पे. तो इस मॉर्निंग साइट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 11:30 पे. So 0830 साइट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू 11:30.
तो 3 घंटे का हमें रन अप्लाई करना है और पीएल को ट्रांसफर करना है। अब बेटा जो इन्होंने 11:30 की साइट हमें दी है, इस साइट के लिए इन्होंने हमें DR पोजीशन नहीं बताई है। ओके, so what I am saying is this latitude and this longitude is not given to us, this is not available। तो अगर हमें 11:30 की साइट को प्लॉट करना है तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड तो निकालना पड़ेगा। अब ये लेट लॉन्ग कैसे निकालेंगे? इसके लिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में एक इंडिकेशन दी है that the second site was taken by running up the DR position। अब इसका क्या मतलब है? Understand, this is a very fine point। Now running up the DR का क्या मतलब है? Let me explain you the scenario। मान लेते हैं कि हमने शिप पे 8:30 पे ये साइट ली, हमारे पास DR पोजीशन है 48, 30, 24, 20 इज द DR पोजीशन। हमारे पास ये साइट भी आ गई, हमने ये PL को चार्ट पे प्लॉट भी कर लिया। नाउ वी डोंट हैव GPS विद अस, so when we take a site, after that we do DR navigation। DR navigation means we apply the course steered and the engine speed and keep on finding our position hour after hour। Nowadays this is done by the GPS। GPS gives us a new position every second, but in the olden days when GPS was not there, we used to do it manually। So we used to plot our position on the basis of course steered and engine speed every hour। That is known as DR navigation। Now after 8:30, when you do DR navigation, there are two options which are available to you। One option is that you continue moving your old DR position। Let me show you। This is my old DR position। Now my course is 250 and the speed is 14 knots। So I can keep on applying this course 250 and a speed of 14 knots, and I keep on calculating my next hour position। That's one option which is available to me। Second option which is available to me is that instead of taking forward my DR position of 8:30, I now take forward my ITP position। So I apply my course steered and the distance run, engine distance every hour, and then keep on calculating my DR position later on। These are the two options available to me। One is the yellow line, another is the light blue, sky blue line। So which option as per you should be more appropriate or accurate or recommended? Okay, the yellow one or the light one, which option is better? Sir, light one। Yellow or blue? Blue one beta? Blue one sir, blue one। Okay। सर ITP होगी ना सर, ज्यादा सही, वहां पर पोजीशन लग जाएगी तो। नहीं, इसमें ये है कि सर अगर ITP पे आप रन लगाओगे तो ITP की भी तो पोजीशन आपको निकालनी पड़ेगी ना। ओके, दैट्स राइट। उसमें ये है कि हमने एक्यूरेसी तो ITP से ज्यादा आएगी, बट क्वेश्चन में बोल रखा है DR पोजीशन को रन करना है, दैट्स व्हाई वी आर रनिंग DR पोजीशन। नहीं, इसमें वैसे भी अगर बोलूं सर कि अगर DR पोजीशन पे रन लगाते हैं और फाइनल पोजीशन जो आती है हमारी एस्टिमेटेड लैट एंड लॉन्ग आ जाएगा, उस पे हम इनिशियल इंटरसेप्ट को ट्रांसफर कर देंगे जो 8:30 का इंटरसेप्ट था। ओके, तो तब भी आंसर आ जाएगा। राइट बेटा, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ लिसन केयरफुली। हमारे पास यहाँ दोनों ऑप्शन हैं DR नेविगेशन करने के लिए, दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। We can carry forward our old DR position also and we can carry forward our ITP also। ये दोनों को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Now अगर तो चॉइस हमारे पास हो, if you are there as a navigator and the choice is on you, the recommended position to be carried forward is the ITP। Simple reason being, ITP will be more closer to our position as compared to the DR। देखो हमारी जो पोजीशन लाइन है उसके ऊपर हमारी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, हमें अभी पोजीशन तो पता नहीं है, बट वेयर एवर अवर पोजीशन इज, कहीं भी हो, इस PL के ऊपर कहीं भी हमारी पोजीशन हो,
ITP will be more closer to that position as compared to the DR position. In other words, you can say that ITP is a more accurate DR position. So if the option is with us, it is recommended that we carry forward the ITP position. It will keep us closer to where we actually are, and if it will immediately warn us if we are running into danger. That is the purpose. However, if it is mentioned in the question that the navigator has done this, then in that case the option is not with us. Okay, then we will have to just follow what is given in the question. Like in this question, they have said that the second site was obtained basis a position which is calculated by carrying forward or running. This is also known as running the DR or running the ITP. That means you are applying your course and distance on the DR position. That is also known as running the DR. So in this question, they have already informed us that this particular navigator observer has carried forward or run the DR position. So here we don't have any option available to us. So we will go as per what the question says. So अगर हमें ये रेड कलर का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड फाइंड आउट करना है, which is basically the DR position for calculating the second site, तो हमें अपनी ओरिजिनल DR पोजीशन पे 2420 एंड 4830 पे अपना कोर्स और डिस्टेंस 250 एंड द डिस्टेंस रन इन 3 hours, that is 42 miles, ये अप्लाई करना पड़ेगा. And since the distance is huge, 42 miles, we will be applying it by using plane and parallel sailing. हमारे पास सेकेंड साइट के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यहाँ से आएगा. So that's how we find this latitude and longitude. Once you have this lat and long for the second site, now the second PL can be plotted in your final plot. आप अपने final plot में ये जो second PL है इसको easily अब plot कर सकते हो. Latitude भी आ गया, longitude भी आ गया, azimuth हमारे पास है, intercept is given to us. So we can have the second PL on our final plot. ये second PL 1130 की आ गई. अब हमें इस साइट को वर्कआउट करने के लिए पहले वाली PL को ट्रांसफर भी करना है. 830 PL को 1130 पर ट्रांसफर भी करना है. अब ये सेकंड है, ये बिल्कुल दूसरा स्टेप है बेटा, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट वी हैव टिल नाउ डन. अभी तक हमने 1130 की PL को अपने फाइनल प्लॉट में ड्रॉ किया है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें 830 की PL को 1130 पे ट्रांसफर करना है. नाउ इस PL को ट्रांसफर करने के भी दो मेथड हैं हमारे पास. एक मेथड तो ये है कि आप DR पोजीशन पे रन अप्लाई करो, जो नई DR पोजीशन आ गई वहां पे फिर से ये इंटरसेप्ट लगा दो और अपनी ट्रांसफर्ड PL को ड्रॉ कर दो. ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना ITP पोजीशन निकाल लो. ITP पोजीशन पे कोर्स और डिस्टेंस अप्लाई करो और जो नई पोजीशन आएगी उस पोजीशन में अब फिर से इंटरसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है. उसी पोजीशन में से आप एक लाइन इनिशियल PL के पैरेलल अगर ड्रॉ कर दोगे तो आपकी PL आ जाएगी, ट्रांसफर्ड PL आ जाएगी. So these are the two options which are available to us to transfer the 830 PL. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? हमारे लिए बेटर ऑप्शन है अप्लाइंग द रन ऑन द DR पोजीशन एंड देन ट्रांसफरिंग इट. रीजन इसका ये है कि हम ये कैलकुलेशन ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में कर चुके हैं. 1130 PL को ड्रॉ करने के लिए दिस कैलकुलेशन इज ऑलरेडी डन. सो इसी कैलकुलेशन को हम यूज करके 830 PL को आगे ट्रांसफर कर देंगे. देखो ये पोजीशन तो हमने निकाल ही ली है. दिस पोजीशन विच वी हैव गॉट, दिस वन is actually the DR position of 830 transferred to 1130. So ये पोजीशन तो आई गई है. अब इस पोजीशन पे अगर मैं मॉर्निंग का इंटरसेप्ट अप्लाई कर दूं, तो लेट मी चेंज द कलर. ये मॉर्निंग का इंटरसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 100
and I put the intercept also, then I have my transferred PL straight away on the plot. So wherever these two intersect will be our 1130 fix. So that is the logic behind it. So was I clear, beta, or anything is missing out? Any doubt you are having? नहीं सर, बस यही डाउट था सर, आईटीपी से लगाएं या डीआर से लगाएं, क्योंकि कल डिस्कशन कर रहे थे तो आईटीपी पे बात कर रहे थे और फिर उसमें एग्जांपल में डीआर पे लगाया हुआ था, तो यही डाउट था, बाकी सोल्व तो मैंने कर लिया था। ओके, सो दैट्स सॉर्टेड आउट नाउ। यस सर। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। ये थोड़ा समझाएंगे, ये जैसे 830 का पीएल है, वो ट्रांसफर करके 1130 की पोजीशन कैसे निकल सकती है, मतलब कि वो तो चेंज नहीं हो जाएगा? थोड़ा मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन सी है सर इसमें। ओके बेटा, मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, let's keep this. I will not erase it. Let's keep this and I'll show you how it is done. ओके बेटा, मॉर्निंग 8:30 पे उन्होंने हमें एक पीएल दिया है। ये है इंटरसेप्ट का पीएल, azimuth is 100 and intercept is given to us. So if we apply that intercept, this is our 8:30 position line. अब इस पीएल को हमें ट्रांसफर करना है 11:30 पे। ओके, लेट अस से वी हैव अ सर्टेन कोर्स स्टीयर्ड। लेट अस से कि हमारा जो कोर्स स्टीयर था वो 060 था। अब आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट 060 इज आवर कोर्स एंड वी हैव रन अ डिस्टेंस ऑफ 40 माइल्स, लेट अस से। तो एक ऑप्शन मेरे पास इसे ट्रांसफर करने का है कि जो मेरी डीआर पोजीशन है, मैं उस डीआर पोजीशन पे ये 060 का कोर्स अप्लाई कर दूं। 060 का मैंने ये कोर्स अप्लाई कर दिया। दिस इज 060 एंड डिस्टेंस इज 40 माइल्स। ये मैंने अज्यूम किया है, तो ये 40 माइल का डिस्टेंस मैंने अप्लाई किया। लेट्स फॉर नाउ थिंक कि हमारे पास एक चार्ट है और हम ये चार्ट पे प्लॉट ही कर रहे हैं। तो मेरे पास ये एक नई पोजीशन आ गई, तो इस पोजीशन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब जो भी ये पोजीशन आई है, अगर मैं इस पोजीशन पे 100 का एजीमुथ लगा दूं और जितना मेरा इंटरसेप्ट था वो इंटरसेप्ट भी यहाँ पे लगा दूं एंड इस पॉइंट से अपनी पीएल को ड्रॉ कर दूं विच विल बी परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ ऑब्वियसली, तो ये मेरी ट्रांसफर्ड पीएल आ जाएगी। ये है फर्स्ट मेथड टू ट्रांसफर द पोजीशन लाइन। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रनिंग द डीआर पोजीशन और अप्लाइंग द रन ऑन द डीआर पोजीशन। तो बेटा ये मेथड क्लियर है? सर ये तो क्लियर है सर। मुझे एक चीज थोड़ा कंफर्म करना था, जैसे अभी 800 आवर्स की पोजीशन अलग है हमारी और 1100 आवर्स की पोजीशन अलग है, तो इन दोनों का पोजीशन लाइन भी तो अलग अलग होगी सर, पीएल भी तो अलग अलग होगी क्योंकि पोजीशन अलग अलग है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सा थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। ओके, तो मेरा बोलना, हाँ आप ये बोल रहे हो कि 8 o'clock की और 8:30 की और 11:30 की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, तो पीएल भी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ जी सर, वही मैं पूछ रहा हूँ सर, हम 8 को ट्रांसफर करके कैसे कर सकते हैं मतलब? ओके, और हमने क्या किया, हमने जो 8:30 वाली पीएल है किसी को 11:30 पे ट्रांसफर कर दिया। सो हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? राइट सर। ओके ठीक है बेटा। एनीवे लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। मैं आपके डाउट पे दोबारा आता हूँ। तो बेटा ये एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, दिस इज अप्लाइंग द रन ऑन द डीआर पोजीशन एंड ट्रांसफरिंग द पीएल। एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट्स डू दैट सेकंड ऑप्शन विद द रेड कलर मार्कर। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डीआर पोजीशन पे रन अप्लाई ना करें, हम रन कहाँ अप्लाई करें, आईटीपी पोजीशन। आईटीपी पोजीशन पे अगर मैं सेम रन अप्लाई करता हूं 060 into 40 माइल्स,
तो ये पोजीशन मेरे पास सीधा आ जाएगी, ये पोजीशन। तो इफ यू अप्लाई द रन ऑन द आईटीपी पोजीशन, जो भी नई पोजीशन रेड कलर की जो पोजीशन आपके पास आएगी, आप इसमें से इनिशियल पीएल के थ्रू ये सेकेंड पीएल जब ड्रॉ करोगे तो आपकी ट्रांसफर्ड पीएल आ जाएगी। दिस इज नोन एज अप्लाइंग द रन ऑन द आईटीपी पोजीशन। ये दूसरा मेथड है जिसके साथ पीएल को ट्रांसफर किया जा सकता है। दोनों मेथड में आपको सेम ट्रांसफर्ड पीएल मिलेगी। चाहे आप रन डीआर पे लगाओ और इंटरसेप्ट को बाद में लगा दो, चाहे आप पहले इंटरसेप्ट लगाओ और उसके बाद रन को अप्लाई करो, दोनों केसेस में आपको पोजीशन सेम ही मिलेगी। इफ यू सी केयरफुली, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई। द ग्रीन एंड रेड कलर लाइंस आर टू पैरेलल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो इंटरसेप्ट है दोनों जगह पे, दैट इज अनदर टू पैरेलल लाइंस ऑफ द पैरेललोग्राम। और दोनों केसेस में इनका डायगोनल सेम होने वाला है, so you will reach at the same position. ओके, अब बेटा इस चीज पे आते हैं कि 8 o'clock की पोजीशन हमारी कुछ और है, 1100 की या 1130 की पोजीशन कुछ और है। ये हमने लाइन को ट्रांसफर करके 8 o'clock की पीएल को 11 o'clock की पीएल कैसे बना दिया। ओके, अब इस चीज को समझते हैं। सर इसमें एक डाउट है। बेटा पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें, जो ये इनका डाउट था। लेट मी सॉर्ट दिस आउट, जस्ट होल्ड योर डाउट, वंस दिस इज डन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ओके, ठीक है सर। ओके, अब बेटा हमने 8 o'clock पे एक साइट ली, इंटरसेप्ट साइट, और हमारे पास ये पीएल आ गई। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हमारी पोजीशन इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पीएल। ये दो एरोज हमने साइड में लगा रखे हैं, इनका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है पीएल इसी सेगमेंट में हो, सॉरी पोजीशन इसी सेगमेंट में हो, पोजीशन इनके बाहर भी हो सकती है। इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन आउटवर्ड्स, आप अगर इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो पोजीशन इसके बाहर भी हो सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द पोजीशन लाइन। ओके, अब हमने बेटा 8 o'clock से 1100 आवर्स तक 060 का कोर्स जो है ये स्टीम किया है और 40 माइल का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। कुछ भी कोर्स और कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम पीएल के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे ये कोर्स और डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने ये आईटीपी पॉइंट पे कोर्स और डिस्टेंस को अप्लाई कर दिया, हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, नई पोजीशन आ गई, और हमने इस नई पोजीशन में से इनिशियल पीएल के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू माय 8 o'clock पीएल। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये हमारी 1100 की पीएल बन गई। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है बेटा, लॉजिक इज ए ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल। अब आप इनिशियल पीएल पे किसी भी पॉइंट पे हो सकते थे 8 o'clock पे। 8 o'clock के बाद आपने यही कोर्स और डिस्टेंस स्टीम किया है। आप अगर इनिशियल पीएल पे किसी भी पॉइंट पे हो, नंबर 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, अगर आप किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से नंबर 5 पॉइंट पे थे हम, एक्चुअली हमने इस नंबर 5 पॉइंट पे भी 060 और 40 माइल का अगर डिस्टेंस लगाया तो हम इसी लाइन पे पहुंचने वाले हैं। ये पैरेलल लाइन का प्रिंसिपल है कि दो पैरेलल लाइन अगर हैं तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स और डिस्टेंस से किसी भी पॉइंट पे अगर अप्लाई करके दूसरी लाइन पे पहुंच रहे हो, एट एनी अदर पॉइंट ऑन द पैरेलल लाइन इफ यू आर देयर, तो आप उस कोर्स एंड डिस्टेंस के साथ उसकी पैरेलल लाइन पे ही पहुंचोगे। ना आप इस तरफ हो सकते हो ना इस तरफ हो सकते हो, यू विल बी एग्जैक्टली ऑन दिस पैरेलल लाइन ओनली। So if at 8 o'clock you are on this line and 8 to 11 if you have steered this course and distance, you have to be somewhere on the red color line at the 1100 hour. That is how we transfer a position line. अब बेटा ये समझ में आया? जी सर, जी सर। Okay, तो चाहे 8 o'clock का टाइम हो, चाहे 1100 का हो, चाहे नेक्स्ट डे नून चले जाएं हम, अगर हमें कोर्स और डिस्टेंस पता है तो उसी पीएल को हम लोग कंटिन्यूसली आगे ट्रांसफर करके चले जा सकते हैं। ओके, अब बेटा अगला डाउट, नेक्स्ट डाउट।
सर ये जो ग्रीन कलर की जो आपने 06040 वाला ट्रांसफर किया था, ग्रीन वाला जो है, ये सर ऐसे मतलब ऐसे ट्रांसफर करना है या फिर डायरेक्ट हम उसमें डी लॉन्ग वो डी लैट डिपार्चर वाली कैलकुलेशन लगा के भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना 8 o'clock की डीआर पोजीशन, जितने भी घंटे के लिए जिस टाइम के लिए निकाल सकते हैं ना। यू आर राइट, हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रांसफर करने के। एक है प्लॉटिंग मेथड या ज्योमेट्री मेथड, जिसमें हम लोग टूल्स को यूज करते हैं। आप अपने इनिशियल प्लॉट पे 060 का एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 060 के एंगल पे फिर इसे रन करोगे 40 माइल्स एज पर यूर स्केल। एक तो ये मेथड है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मेथड और प्लॉटिंग मेथड और ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम इस लैट लॉन्ग को पिक करें, इनिशियल पोजीशन का जो लैट लॉन्ग है, और उसमें प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग से डिपार्चर, डीलैट और tan कोर्स वाले फॉर्मूले लगा के इस कोर्स और डिस्टेंस को हम लोग अप्लाई कर दें। उसमें हमने कोई टूल यूज नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। हमारे पास स्ट्रेट अवे ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमारी आंसर शीट में थ्रू कैलकुलेशन आ जाए। दैट इज द कैलकुलेशन मेथड। हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड मेथड है फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 माइल कैलकुलेशन मेथड। तो अगर डिस्टेंस 10 माइल से ज्यादा हो तो हम कैलकुलेशन मेथड को यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस 10 माइल से कम हो तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आप कर रहे हैं सर, इसमें कैलकुलेशन वाला रिकमेंडेड है। दैट्स राइट बेटा, मैंने ये प्लॉटिंग तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसान हो जाए इसलिए बना दिया था, लेकिन अगर इस प्लॉट को हम सॉल्व करेंगे वी विल बी यूजिंग कैलकुलेशन मेथड फॉर 40 माइल। ठीक है सर। सर और एक वो B2 क्वेश्चन सर एक बार बता देते तो। ओके, B2 क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स इरेज दिस। सर वन मोर डाउट सर इसमें। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जो आपने अभी इसमें आईटीपी पे लगा के पोजीशन ट्रांसफर की है और डीआर पे लगा के पोजीशन ट्रांसफर की है, अगर हम डीआर पे लगा के कर दें तो फिर हमारा हाफ वर्क कम हो जाता है ना सर। आईटीपी पे लगाएंगे तो फिर वहां पर पोजीशन पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके बेटा, अगर आप डीआर पे अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन मेथड से ये नई पोजीशन निकालोगे आप, फिर उसके बाद आईटीपी को प्लॉट कर दोगे। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अगर आप आईटीपी पे लगाओगे तो यू आर राइट कि हमें आईटीपी की पोजीशन निकालनी है, फिर उसके बाद इस कोर्स डिस्टेंस को अप्लाई करके तब ये पोजीशन हमारे पास आएगी। दिस इज द डाउट ना बेटा? यस सर, वही सर पूछ रहा हूँ। ओके, अब बेटा इसे सॉर्ट आउट करने का आसान मेथड ये है कि जब आप प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग में इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो आप ये दोनों कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हो। आपको आईटीपी का लैट लॉन्ग निकालने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर डेज वर्क के जो क्वेश्चन हमने किए थे, डेज वर्क के जो क्वेश्चन सेकंड मेट्स में भी हमने किए हुए हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे कोर्सेज और डिस्टेंसेस को एक टेबल बना देते हैं। उस टेबल में डीलैट और डिपार्चर निकाल लेते हैं रिजल्टेंट, एंड स्ट्रेट अवे उन सारे कोर्सेज और डिस्टेंसेस के बाद हमारी नेक्स्ट डे नून पोजीशन हमारे पास आ जाती है। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर। आपको आईटीपी की पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप दोनों कोर्सेज का डीलैट और डिपार्चर निकाल लो, उसे कंबाइन कर लो। मीन सेम नेम के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट नेम के हैं तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड that one single calculation will give you the final position to draw the transferred PL. ओके सर, ठीक। ओके ओके, सो और कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये ट्रांसफरिंग ऑफ पीएल ये सिर्फ अगर एक ही कोर्स चल रहा हो, सेम कोर्स, तभी हो सकता है ना? अगर ऑल्ट्रेशन होगी तब नहीं हो सकता, राइट? नहीं बेटा, तब भी हो सकता है। अगर आप 3 कोर्सेज या 4 कोर्सेज क्लियर कर चुके हो और आप बोलो करंट भी अप्लाई हो रहा है ना, 8:30 to 11:30 हमने 4 कोर्सेज क्लियर किए हैं और करंट भी अप्लाई हो रहा है, इवन देन वी कैन यूज दिस कैलकुलेशन मेथड।
हम ये सारे के सारे कोर्सेज और डिस्टेंसेस को एक टेबल में डाल के, जो मैंने अभी बताया आपको, ओके ओके सर, एक ही टेबल में इस डाल बार के अपना रिजल्टेंट आंसर निकाल सकते हैं। ओके सर, ओके सर ये B2 क्वेश्चन जो आपको पूछा है इसमें सारा आ जाएगा सर, ये दोनों डाउट। चलो बेटा B2 पे चलते हैं। लेट्स इरेज दिस। ओके सो सर ये जो नाउ बेटा स्टैगर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिकल नेविगेशन में जो आपने बताए थे ये देखे थे सर, तो इसमें इन्होंने हर क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया है, एक फर्स्ट ग्राफ के साथ, दूसरा अल्टरनेट मेथड विदाउट प्लॉटिंग। बेटा वो तो सर ऑल्टरनेट मेथड आप छोड़ देना, ऑल्टरनेट मेथड डोंट गो इनटू इट। वो मैं बता दूंगा आपको बाद में क्या होता है, बट दैट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, फॉरगेट अबाउट दैट ऑल्टरनेट मेथड। हाँ सर, मैं वही कहना चाह रहा था कि वो तो किसी का समझ नहीं आया, ये तो पहला वाला तो थोड़ा बहुत समझ में भी आया, अल्टरनेट मेथड समझ नहीं आ रहा था। आप भूल जाओ बेटा, वो सही है, आप कह रहे छोड़ना तो अच्छी बात। alternate method does not exist, forget about it। अच्छा ठीक है सर, अच्छी बात है सर। ओके तो अब ये बेटा जो B2 क्वेश्चन है, कैन यू जस्ट डिक्टेट इट स्लोली, आई विल मेक ए रफ डायग्राम हियर स्ट्रेट अवे। जी सर। सर इन DR 18 डिग्री 41 मिनट साउथ, 179 डिग्री 56 मिनट ईस्ट, एंड इंटरसेप्ट ऑफ 179.56 east। Okay, you got a intercept. An intercept of 8.4 minute towards azimuth 083 degree. Okay, azimuth is 083 and intercept is 8.4. Okay, 8.4 towards. Right, बेटा ये हमारे पास PL आ गई। Okay. Was obtained by stellar observation. The vessel then steered 121 degree true. Okay. For 70 miles. Okay. For 70 miles by log, when a meridian altitude gave an observed latitude of 19 degree 14.9 minutes south. Okay. ठीक है बेटा। या If a set, आगे भी है सर। हाँ बोलो बेटा, आगे बोलो। If a set of 2 to 4 degree true and a drift of 10 mile was experienced during the interval, find the position of the vessel at the second observation. Okay. राइट बेटा। तो इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने पहले तो एक इंटरसेप्ट साइट ली है, देन इसके बाद शिप ने एक पर्टिकुलर कोर्स स्टीयर किया है 1 to 1 70 माइल का डिस्टेंस कवर किया है, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरवल हमें एक करंट का भी इफेक्ट मिल रहा है, दैट इज 2 to 4 एंड द ड्रिफ्ट इज 10 माइल, एंड आफ्टर दिस इंटरवल उन्होंने एक मरपास ऑब्जर्वेशन ली है और ऑब्जर्व लेट हमें दे दिया है। So this is the rough diagram of the question, which basically includes all the information. अब हमें हमारी फाइनल पोजीशन चाहिए। अब देखो बेटा, फाइनल लैटिट्यूड तो 14.9 ही होगा, तो लैटिट्यूड तो मिल ही गया स्ट्रेट अवे। ओके, सिर्फ बच गया है लॉन्जिट्यूड को निकालना। अब लॉन्जिट्यूड को निकालने के लिए हमें इनिशियल PL को ट्रांसफर करना है टू द सेकेंड साइड। ट्रांसफर करने के लिए एक तो कोर्स है हमारे पास 1 to 1 एंड 70 माइल डिस्टेंस, दूसरा करंट है 2 to 4 10 माइल डिस्टेंस। अब बेसिकली ये दो वेक्टर्स हैं जिनको हमने अपने इनिशियल DR पोजीशन पे या ITP पे लगाना है। ओके, अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एज आई टोल्ड यू। एक ऑप्शन है कि हम DR पोजीशन पे इन दोनों को अप्लाई कर दें, दोनों कोर्सेज को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं बाय मेकिंग ए टेबल। दोनों का अलग से डीलैट निकल जाएगा, दोनों का डिपार्चर निकल जाएगा, उनको कंबाइन कर देंगे। मीन्स अगर सेम नेम के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट नेम के हैं तो बिगर माइनस स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर हम इसे DR पोजीशन पे लगाते हैं इन दोनों कोर्सेज और डिस्टेंसेस को, तो हमारे पास एक नई पोजीशन आएगी। ओके, लेट्स अज्यूम कि वो जो नई पोजीशन है वो, लेट मी पिक अप स्क्रीन। लेट्स अज्यूम कि जो नई पोजीशन आ गई वो आ गई ये वाली पोजीशन। फाइनल प्लॉट के हिसाब से दिस इज द लैटिट्यूड, ये नई पोजीशन का लैटिट्यूड और ये लॉन्जिट्यूड आ गया। अब इस पोजीशन पे
हम अपना इंटरसेप्ट लगा सकते हैं और ये PL भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये ट्रांसफर्ड PL आ गई हमारी। Wherever this PL intersects the observed lat, ये फिक्स आ जाएगी। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन विच वुड बी बेटर ऑप्शन इन दिस केस वो ये है कि आप रन DR पे अप्लाई मत करो, आप रन को अप्लाई करो ITP पे। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आपकी DR पोजीशन है उस पे आप ये दोनों कोर्सेज तो लगा ही रहे हो, आप उस पे 083 का कोर्स, लेट मी राइट इट हियर, 083 का कोर्स और 8.4 माइल का डिस्टेंस ये भी अप्लाई कर दो, क्योंकि हमने टेबल तो बनाना ही है, 2 कोर्सेज लगाने हैं। जब आप ये तीसरा वाला कोर्स और डिस्टेंस लगाओगे तो ऑटोमेटिकली बेटा इंटरसेप्ट भी आपकी कैलकुलेशन में कंसिडर हो गया। तो बेसिकली आप यहाँ से इंटरसेप्ट पे जाओगे, ITP पे जाओगे पहले, फिर ये दोनों कोर्सेज लगाने के बाद अब आपके पास स्ट्रेट अवे ये रेड कलर की पोजीशन आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी आपके पास स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपने इंटरसेप्ट को, इस पार्ट को अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से इंटरसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पहली PL के पैरेलल आप ये यहाँ पे ट्रांसफर्ड PL ड्रॉ कर दो। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। दोनों किए जा सकते हैं, बट अगर आप इसे पूरा का पूरा कैलकुलेशन से करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। However, the second method is also perfectly fine. तो सर जो हम ये 083 और 8.4 इंटरसेप्ट भी ऊपर ही कैलकुलेशन में ले लेते हैं और डीलेट डिपार्चर निकालते टाइम, तो फिर हमें फाइनल प्लॉटिंग में वो मतलब उसी में पोजीशन पे ही आ जाता है, फिर उसमें इंटरसेप्ट नहीं लगता। राइट, एजीमुथ से जाके बनाने की जरूरत नहीं होती उसको। यस, दैट्स राइट। फिर आपके पास जो पोजीशन आ गई, आपकी PL उसी पोजीशन में से पास करेगी, आपको दोबारा से इंटरसेप्ट नहीं लगाना है, बिकॉज हमने उसे ऑलरेडी अपनी कैलकुलेशन में कंसिडर कर लिया है। अच्छा, वही सर समझ नहीं आ रहा था कि ये पोजीशन लगा के डायरेक्ट उसमें एजीमुथ क्यों नहीं लगाया हुआ है, वही पंगा पड़ रहा था। ओके, सो इट कैन बी डन दिस वे। अब बेटा अगर तरीके सही है ना सर? दोनों मेथड सही है बेटा, दोनों मेथड सही हैं, दोनों से आपको सही पोजीशन मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत 0.1, 0.2, 0.3 का डिफरेंस आ सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लॉटिंग। ओके, अब बेटा इसी में एक चीज मुझे और ऐड ऑन करने दो, वो ये कि लेट अस से हमारा ये जो इंटरसेप्ट है, इस केस में तो टूवर्ड था, वो अवे होता। सो इन दैट केस 083 का एजीमुथ है, इंटरसेप्ट अगर अवे होता तो फिर PL बनती इस तरफ, we will have to go away from the celestial body then. तो अगर हमारा इंटरसेप्ट अवे होता 8.4 माइल्स अवे, नाउ कैन यू टेल मी बेटा उस केस में हमारा कोर्स क्या होता? सर 263। वेरी गुड। तो उस केस में हमारा कोर्स जो है, फर्स्ट कोर्स जो आएगा वो 263 आ जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द एजीमुथ ऑफ द बॉडी। हम फिर 083 की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेसिप्रोकली ऑपोजिट। सो फर्स्ट कोर्स वुड देन बिकम 263। सो अगर आप इसे कैलकुलेशन में कंसिडर कर रहे हो एंड इंटरसेप्ट अवे आता है, तो आपका जो पहला कोर्स होगा दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ योर एजीमुथ। तो कैलकुलेशन में सर ऊपर ये 083 की जगह 263 लेके और वो इंटरसेप्ट इनटू 8.4 ही रहेगा, लगा लें। यस बेटा, दैट्स राइट, इंटरसेप्ट विल रिमेन 8.4। ठीक है सर, पोजीशन लैट वो समझ में आ गया इसमें कैसे आया था, बट इसमें फाइनल पोजीशन पे उसने बोला था कि ऑब्जर्व लॉन्ग मिला था जो कि 178 डिग्री 12.7 वेस्ट है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे आपने मेरे को जो फंडा बताया था कि व्हेन यू आर गोइंग ईस्ट देन लॉन्जिट्यूड इज इंक्रीजिंग एंड वेस्ट देन लॉन्जिट्यूड इज डिक्रीजिंग, उस हिसाब से वी गेट टू नो कि दैट हमें ओके कहाँ, जैसे इसमें ऑब्जर्व्ड लॉन्ग जो है 178 12.7 मुझे किस साइड मारना है, राइट। तो इसमें मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके बेटा, इस केस में बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो तुम्हारे दोनों लॉन्जिट्यूड आ रहे हैं, ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड एंड EP लॉन्जिट्यूड, ये दोनों के दोनों वेस्ट हैं।
यस सर। है ना? So that means 180 is not coming in between these two. तो अब काम बहुत आसान है। वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड इंक्रीज होता है व्हेन यू गो टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ओके, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाओगे, जो भी पेज आपके सामने जहां प्लॉट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड हमेशा इंक्रीज होगा, और अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड इंक्रीज होगा या वेस्टर्ली डिक्रीज होगा। सो रिमेंबर दिस। अब हमारे दोनों लॉन्जिट्यूड हैं वेस्टर्ली, एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड इज गोइंग टू इंक्रीज। सो छोटा लॉन्जिट्यूड जो है वो राइट साइड में आएगा, विच इज 178.12.7, और बड़ा लॉन्जिट्यूड 178.20.3 वाला वो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है सर, क्योंकि वही अगर उल्टा साइड डाल दिया तो फिर तो आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, तुम ऐसा करो, यू जस्ट गिव मी टू लॉन्जिट्यूड, एनी टू लॉन्जिट्यूड्स, लेट मी ड्रॉ देम ऑन द व्हाइट बोर्ड। जो भी लॉन्जिट्यूड में तुम्हें डाउट आ रहा है वो मुझे बताओ, आई विल टेल यू द लॉजिक एंड हाउ टू ड्रॉ देम। मुझे सेम डायरेक्शन में ईस्ट में डाउट नहीं, वेस्ट में डाउट आ रहा था, तो क्योंकि फिर देन आई वाज कोरिलेटिंग दैट फंडा व्हिच यू टोल्ड मी दैट डे, सो देन आई वाज नॉट एबल टू गेट थ्रू दिस, सो दैट्स व्हाई अभी बताता हूं मैं। ये देखो, पहले तो ये डायरेक्शंस अपने माइंड में फिक्स कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दीज आर द डायरेक्शंस। अब तुम दोनों लॉन्जिट्यूड यहाँ पे लिखो जो हमें बनाने हैं। एक लॉन्जिट्यूड है 178, हाउ मच इज दैट बेटा? 178.12, 12.7 वेस्ट। वेरी गुड, so let's take it 12 only, 178.12 वेस्ट। और दूसरा लॉन्जिट्यूड क्या है? 178.20 वेस्ट। 178.20 वेस्ट। ओके, अब हमें पता है कि ये लॉन्जिट्यूड ऐसे बनेंगे। दिक्कत ये है कि राइट साइड वाला लॉन्जिट्यूड कौन सा लॉन्जिट्यूड लें। ओके, अब तुम ये देखो, जो लेफ्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्टर्ली डायरेक्शन। वेस्टर्ली डायरेक्शन में जब भी हम चलेंगे तो वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जो छोटा लॉन्जिट्यूड है दैट इज 178.12 वो यहाँ पे आएगा, एंड लॉन्जिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, बड़ा वाला लॉन्जिट्यूड 178.20 वो यहाँ पे आएगा। ओके सर। आप इसे ईस्ट से भी कर सकते हो, दैट मीन्स ईस्टर्ली डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड हमेशा डिक्रीज होता है। व्हेन यू मूव इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन द वेस्टर्ली लॉन्जिट्यूड ऑलवेज डिक्रीज। तो इसका मतलब है अगर पेज के राइट साइड की तरफ जाओगे तो लॉन्जिट्यूड डिक्रीज होगा। इट अगेन टेल्स यू कि छोटा वाला लॉन्जिट्यूड पेज के राइट साइड में आएगा और बड़ा वाला लॉन्जिट्यूड पेज के लेफ्ट साइड में आएगा। ओके सर, ओके 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 ओके, मैंने एक साइड का ही नोट कर लिया था, वेस्ट साइड का नहीं नोट किया था। ठीक है, समझ में आ गया सर, थैंक यू। और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? तरुण बेटा, यू तो हैड सम डाउट ना? यस सर, वो साइट वाला था सर प्रॉब्लम। ओके, बताओ बेटा। यस सर, जैसे अगर हम प्रैक्टिकल वे में पूछ रहा हूँ सर, जैसे हम शिफ्ट में साइट ले रहे हैं तो 8 o'clock, सपोज 8 o'clock हमने एक साइट ले ली लॉन्ग बाई क्रॉन, ओके, एंड सर 10 o'clock दूसरी साइट ले ली इंटरसेप्ट से, तो हमें फाइंड करना है 10 o'clock का पोजीशन सर। तो हमने डीआर पोजीशन लेनी है जो 10 o'clock की, वो कौन सी रहेगी, और हम जिससे कैलकुलेट करेंगे, लाइक लॉन्ग बाई क्रॉन कैलकुलेट किया और इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया सर, वो कौन सी डीआर पोजीशंस लेंगे? ओके, देखो बेटा, पहली साइट के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। पहली साइट के लिए तो जो डीआर पोजीशन होगी उसी को यूज करेंगे, करेक्ट? ठीक है सर, जो मिली हमने वही साइट से ले ली सर। हाँ, जो भी डीआर पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है, डीआर बेसिकली मीन्स whatever estimated position, whatever position you have estimated, to your best estimate, आपने estimate किया कि I should be close to this position somewhere, that is your DR position। आपने उसी position को use करके first side को solve कर लिया, that's first side done। अब second side के लिए, first side आपने ले ली, आपने long by cron method से ली है, correct? Yes sir। Okay, अब long by cron से आपने ले ली। Let me open up the whiteboard and show you।
सो लेट अस से मॉर्निंग साइट आपने ली, ये आपकी डीआर पोजीशन थी। अब आपने एक ऑब्जर्व लॉन्ग निकाला, लेट्स मार्क इट रेड, ये ऑब्जर्व लॉन्ग आ गया। ओके, दिस इज ऑब्जर्व्ड लॉन्जिट्यूड एंड द ब्लू वन इज द डीआर लॉन्जिट्यूड। ये मैंने डीएल और ओएल से मार्क कर दिया है। तो ये पहली वाली साइट तो हमारी वर्कआउट हो गई है। अब ऑप्शन और डाउट ये आता है कि हमने कुछ टाइम सेल करने के बाद एक सेकंड साइट लेनी है, या अगर ना भी साइट लेनी हो तो जब ये ऑब्जर्वेशन हमने ले ली, इससे फर्दर डीआर नेविगेशन कैसे करें? अपनी डीआर पोजीशन को आगे ट्रांसफर करते चले जाएं या डीआर लेट और ऑब्जर्व लॉन्ग को आगे ट्रांसफर करें? तो एज वी जस्ट डिस्कस्ड बिफोर, रिकमेंडेड जो तरीका है, बेटर जो तरीका है, वो तो ये होगा कि आप ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड को आगे ट्रांसफर करो, बिकॉज जो आपकी जो ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड वाली पोजीशन है, दिस इज ए मोर एक्यूरेट डीआर पोजीशन। फिक्स तो अभी नहीं मिली है हमें, लेकिन पीएल तो मिल गई है। लेट अस से दिस इज द पीएल। नाउ द चांसेस आर कि जो हमारा ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड और डीआर लेट वाली पोजीशन है, it will be more closer to our actual position as compared to the DR latitude and longitude. So it is recommended that you carry forward the observed longitude going further. However, अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये बोल दिया है कि आपने डीआर पोजीशन को ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, नाउ वी कैन नॉट राइट कि भाई नेविगेटर ने गलत काम किया, he should have carried forward the observed longitude. We cannot do that way. Whatever they have given us in the question, हम उसी के बेसिस पे फिर अपनी कैलकुलेशन कर देंगे। ओके बेटा, इज इट गेटिंग क्लियर नाउ? ये ठीक है सर, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये डीआर लॉन्ग और इस पे कैलकुलेट करके अब लॉन्ग बाय क्रॉन निकाल लिया, तो अगर हम यही डीआर और जो डीआर है उसी पे हम इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 11 बजे के लिए पोजीशन पे, सेम पोजीशन। एक बार दोबारा बताओ बेटा, ये साइट हमने ली 9 बजे, करेक्ट? यस सर, यही जो पोजीशन है हमारी डीआर की, उसी लैट लॉन्ग से हम क्या बोलते हैं अपना 11 o'clock का इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि डीआर पोजीशन पे हमने रन अप्लाई किया 2 घंटे का, ये हमारे पास 1100 की डीआर आ गई और इस पोजीशन पे अब हम इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, राइट बेटा? यस सर। So you want to calculate the intercept basis this position? Yes, you can do it beta. There is no problem at all. It can be done. और आपकी जो PL आएगी ये करेक्ट आएगी, 1100 की PL will be perfectly correct. बट इस केस में आप यही कह रहे हैं ना कि सर एरर एक्यूरेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी इस केस में अगर डायरेक्ट डीआर पे अप्लाई करते हैं, राइट? बेटा यहाँ पे ना दो चीजें आ गई अब। what he is asking is कि प्रैक्टिकली ये साइट वर्कआउट करने के लिए इस पोजीशन को यूज किया जा सकता है या नहीं। दैट इज प्रैक्टिकली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द साइट ऑन बोर्ड। जो मैं लॉस ऑफ एक्यूरेसी की बात कर रहा था उसमें कैलकुलेशन तो हो चुकी है, उसमें तो सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे हैं हम। ओके, सो टू डिफरेंट थिंग्स कमिंग हियर। ओके सर, ओके ओके ओके। प्लॉटिंग में तो जैसा हमें क्वेश्चन में बोला होगा हम वैसा ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड को कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसे करेंगे आगे, डीआर लॉन्जिट्यूड को कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसे करेंगे आगे। बट प्रैक्टिकली शिप में आप दोनों मेथड में किसी को भी यूज कर सकते हो। आपकी 1100 आवर्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल पोजीशन लाइन जो है वो बिल्कुल सही आएगी। सर बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कुछ भी मेथड मेंशन नहीं है, राइट, देन हम लोग को ऑब्जर्व वाले पोजीशन से ही जाना चाहिए ना, जो ऑब्जर्व लॉन्ग पे है या फिर आईटीपी पे है, राइट? राइट बेटा, राइट। अब देखो, अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन सी पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया गया है, फिर तो डाउट नहीं है, वी विल पिक अप दैट पोजीशन वेदर रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया तो हम उसे पिक करके अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशनड ही नहीं है, उन्होंने सीधा बोला जी मॉर्निंग में एक लॉन्ग बाय क्रोन की साइट ली, दोपहर को आपने एक इंटरसेप्ट साइट ली और कुछ बताया ही नहीं कि इंटरसेप्ट साइट के लिए क्या यूज किया गया है।
टीआर को रन किया गया है या ऑब्जर्व लैट ऑब्जर्व लॉन्ग को रन किया, किसको रन किया है, कुछ नहीं बताया हमें। अब ऐसे केस में बेटा दैट क्वेश्चन इज बेसिकली इनकम्प्लीट, सो हम उसमें ये लिखेंगे since the method or since it is not mentioned which position is carried forward, we are applying the run on the observed longitude or on the ITP. Okay? ऐसा करके हम उसी बेसिस पे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देंगे। ऐसे केसेस में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि साइट लेने के बाद जो भी मोर एक्यूरेट टीआर पोजीशन आपको मिली है आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। ओके सर, गॉट इट सर। ओके।